Microorganisms. Microorganisms. It is classified into two types: prokaryotics and eukaryotics. Prokaryotics and eukaryotics. Example of prokaryotics, that is bacteria. Example of eukaryotics, that is protista, fungi, and algae. Protista, fungi, and algae. These are the example of eukaryotics microorganism. Protista, fungi, and algae. Example of prokaryotics microorganism, that is bacteria. So let's see the detailed information about the bacteria, protista, fungi, and algae. Bacteria. The size of the bacteria, that is 1 micrometer to 10 micrometer. The size of the bacteria is 1 micrometer to 10 micrometer. The bacteria are unicellular. Prokaryotics. Bacteria are unicellular. Prokaryotics. Prokaryotics means there is an absence of nucleus. And membranes. That is the prokaryotics. Then bacteria are unicellular prokaryotics. Okay. Then bacteria are produced by binary fission, by simple binary fission. They are produced by simple binary fission. Binary fission means क्या? एक बैक्टीरिया है, उसके डिवीजन होगा दो बैक्टीरिया में. ओके, फिशन होगा दो बैक्टीरिया में. ये एक बैक्टीरिया फिर से उसका फिशन होगा दो बैक्टीरिया में. लाइक दिस मीन्स 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 16 होगा, 16 का that is going to be increase. ओके, तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16. ओके, 8 का 16, 16 का 32. ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन. तो बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल बाइनरी फिशन. ओके, दे आर इंडिपेंडेंट. बैक्टीरिया आर इंडिपेंडेंट होते हैं. ओके, दे आर इंडिपेंडेंट. Bacteria can be aerobic and anaerobic. Aerobic क्या होता है और anaerobic क्या होता है? Bacteria are aerobic and anaerobic. Aerobic and anaerobic. With this, there is a respiration with oxygen in aerobic, and there is a respiration without oxygen. There is a respiration without oxygen, that is anaerobic. That is a bacteria. Getting what is the bacteria? Okay. What are the example of bacteria? What are the example of bacteria? Example of bacteria. There are some bacteria: cocci, bacillus. There are some bacteria like cocci, bacillus, spirillum, cocci, bacillus, spirillum, and vibrio. तो अब ये देखते हैं bacillus. These are the example of bacteria. Cocci, bacillus, spirillum, vibrio. cocci जो रहता है वो कैसे रहता है? स्फेरिकल शेप होता है. बैसिलस जो रहता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. बैसिलस का रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर ऑफ द बैसिलस. ओके, इट इज अ सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बैसिलस. स्पिरिलम क्या होता है? स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर. ऑफ द स्पिरिलम. स्पाइरल लाइक शेप ऑफ द स्पिरिलम बैक्टीरिया. देन वाइब्रियो, that is a comma like shape.
Okay, comma like shape, that is comma shape, that is vibrio. These are the some bacteria. These are the example of bacteria. Okay, these are the example of bacteria. Getting what is bacteria? Let's see second, that is protozoa. Let's see the second microorganism, that is protozoa. Protozoa. What is the size of protozoa? That is approximately 200 micrometer. 200 micrometer. That is the size of the protozoa. 200 micrometer. Protozoa are unicellular eukaryotics. Protozoa are unicellular eukaryotics. प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं, उसमें मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आता है. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन्स. देन दीज आर फाउंड इन सॉइल, सी वाटर. प्रोटोजोआ नॉर्मली कहाँ पे मिलते हैं? सॉइल में मिलता है, सी वाटर में मिलता है, देन डर्टी वाटर में मिलता है, राइट. डर्टी वाटर में अमीबा वगैरह वो डर्टी वाटर में मिलते हैं मोस्टली. डर्टी वाटर में, सी वाटर में, फ्रेश वाटर में. सॉइल, सी वाटर, डर्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर में आपको क्या मिलेगा? प्रोटोजोआ मिलेगा. ओके, वो क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. ओके, उसका साइज क्या है? 200 माइक्रोमीटर है. अभी जो स्ट्रक्चर रहता है, द प्रोटोजोआ हैज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर. प्रोटोजोआ हैज अ ग्रेट वेरिएशन इन स्ट्रक्चर. प्रोटोजोआ हैज अ ग्रेट वेरिएशन इन स्ट्रक्चर. Organs of locomotion. Protozoa has great variation in structure and organs of locomotions. Okay, because organs of locomotions, there will be organs of locomotion means organs for movement. Organs for movement. Okay, protozoa has a great variation in structure as well as in organs of locomotion. Organs of locomotion means organs for movement. Okay, it can be a hair like cilia or whip like flagella. Okay, that is about the protozoa. Okay, अभी protozoa कौन से एग्जाम्पल कौन से protozoa के वो देखते हैं. Okay, the example of protozoa. एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ कौन से हैं? एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ पहला आता है आपका अमीबा. देन पैरामोशियम उसका स्ट्रक्चर चप्पल जैसा रहता है, आपके सैंडल जैसा. पैरामोशियम, अमीबा, दीज आर फाउंड इन डर्टी वाटर मोस्टली. अमीबा एंड पैरामोशियम फाउंड इन डर्टी वाटर. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ. अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका. एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका. एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका इट कॉजेस अमीबोबायोसिस डिसीज. ये जो प्रोटोजोआ है एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी वजह से क्या होता है? अमीबोबायोसिस डिसीज होता है. अमीबोबायोसिस डिसीज होता है, which causes अमीबोबायोसिस डिसीज. कौन सा? एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका. जो प्रोटोजोआ है उससे कौन सा डिसीज होता है? अमीबोबायोसिस डिसीज. देन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. Plasmodium vivax. इसकी it causes what? It causes मलेरिया. अभी मलेरिया जो डिसीज है वो किसकी वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ की वजह से. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा डिसीज होता है? मलेरिया. ओके, और दूसरा एग्जाम्पल है उसका यूग्लिना. प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दूसरा है यूग्लिना. यूग्लिना क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट की वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और खुद का फूड वो खुद बनाता है, तो इसलिए यूग्लिना इज व्हाट? ऑटोट्रॉप्स.
क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट रहता है। तो ये हो गया अबाउट द प्रोटोजोआ। गेटिंग, दिस इज अबाउट द प्रोटोजोआ। अभी आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं, फंजाई। फंजाई, फंजाई क्या होता है? थर्ड ऑर्गेनिज्म इज, थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? फंजाई। थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फंजाई। इसका साइज क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द फंजाई? 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, इसका फंजाई का। अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द फंजाई इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। फंजाई क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक्स। ओके, दे कैन बी सीन विद नेक आइज, दे कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। नेक आइज से they can be seen with naked eyes, they can be seen with naked eyes। हम उसको खुली आंख से देख सकते हैं फंजाई को। ओके, the fungi are what? The fungi are depend for food, fungi are depend for food on decaying matter and dead materials। The fungi are depend for food on decaying matter and dead materials। Okay, so the fungi are known as saprophytic। So the fungi are known as what? Saprophytic। Saprophytic। fungi are known as saprophytic। saprophytic जो डिकेइंग मटेरियल के ऊपर और डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर द फूड। दिस इज अबाउट द फंजाई। अभी एग्जांपल ऑफ फंजाई कौन से हैं? एग्जांपल ऑफ फंजाई, एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, बिस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, बेकर्स ईस्ट। एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, बेकर्स ईस्ट। ओके, बेकर्स ईस्ट, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। देन मशरूम, मशरूम, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। अभी देखते हैं नेक्स्ट, algae। what is algae? next microorganism, algae। algae क्या होता है? algae का जो साइज होता है वो भी 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होता है। ओके, द साइज ऑफ द algae is 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। algae कैन बी यूनिसेल्युलर, मतलब algae is some of the algae are unicellular, most of the algae are multicellular। some of algae are unicellular, most of them are multicellular। most of them are multicellular। some of the algae are what? unicellular and most of them are multicellular, right? algae का साइज क्या होता है? 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ओके, these are eukaryotics। these are eukaryotics। eukaryotics, there is a presence of nucleus and membrane, that is eukaryotics। algae कहाँ पे मिलती है आपको? this is mostly aquatic। algae is what? aquatic। algae क्या होता है? aquatic होता है। ओके, दिस इज अबाउट द algae। अभी एग्जांपल कौन से algae की? एग्जांपल ऑफ algae, एग्जांपल ऑफ algae, एग्जांपल ऑफ algae, क्लोमेडोमोनास। ओके, क्लाइमेडोमोनास नॉमस। ओके, these are the example of algae। ओके, क्लाइमेडोमोनास, दैट इज द एग्जांपल ऑफ algae। अभी देखते हैं वायरस। व्हाट इज वायरस? वायरस क्या होता है? वायरस की जो साइज होती है वो रहती है आपकी
10 nanometer to 200 nanometer. Size of the virus is 10 nanometer to 200 nanometer. 200 nanometer तक. Okay, 200 nanometer. That is the size of the virus. So this is smaller than, this is 10 to 100 times, 10 to 100 times smaller than बैक्टीरिया. वायरस जो होते हैं 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं. ओके, अब हम वायरस आर नॉट कंसिडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोलते बिकॉज द वायरसेस आर एट द एज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द वायरसेस आर एट द एज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and non-living organisms. अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बोलेंगे वायरस को? जब वायरस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, इनसाइड द सेल होगा, तब हम उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. इफ इट इज आउटसाइड द सेल इट इज नोन एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Virus is present inside the cell, that is known as living organism. If it is outside the cell it is known as non-living organism. तो पता चला लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जब वो इनसाइड होगा सेल के इनसाइड तब उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब वो आउटसाइड होगा सेल के तो उसको बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दैट द वायरसेस एट द एज ऑफ लिविंग एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब वो दोनों के बाउंड्री के ऊपर रहता है, लिविंग कब बोलते हैं और नॉन लिविंग कब बोलते हैं. तो the long molecule of virus contain DNA. Long molecule of virus. There is a long molecule of, in a virus there is a long molecule of DNA. There is a long molecule of DNA. In a virus there is a long molecule of DNA. DNA means deoxyribonucleic acid. The ribonucleic acid, that is RNA. Okay, DNA and RNA. There is a long molecule of DNA and RNA. Okay, which is covered with protein wall. Which is covered with protein wall. अभी ये जो लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड आरएनए रहता है दैट इज कवर्ड विथ प्रोटीन वॉल. उसको क्या रहता है? प्रोटीन का कवरिंग रहता है इसके ऊपर, वायरस के ऊपर. तो जो प्रोटीन है वो कैसे प्रोड्यूस करता है? द प्रोटीन इज प्रोड्यूस दिस इज वायरस, राइट. इसके ऊपर एक प्रोटीन का कवरिंग रहता है. प्रोटीन का कवरिंग रहता है. तो दैट कवरिंग ऑफ प्रोटीन, ओके, जो प्रोटीन रहता है दैट द प्रोटीन इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ what? With the help of host cell. जो होस्ट सेल रहते हैं उनसे प्रोटीन वो प्रोड्यूस करता है और वो क्या करता है? होस्ट सेल को बाद में डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी वजह से वहाँ पे फ्री वायरस जनरेट होता है और वो फ्री वायरस क्या करता है? अनदर होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है. अनदर सेल्स को इन्फेक्ट करता है. उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज अ कॉजेस ऑफ डिसीज. ओके, द वायरस इज द कॉजेस ऑफ डिसीजेस. ओके, तो अभी ह्यूमंस में कौन से वायरस है? ह्यूमंस में है एड्स HIV वायरस. देन पोलियो वायरस है, अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस. ओके, एड्स है, पोलियो वायरस है, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है. प्लांट्स में
प्लांट्स में कौन से वायरस है? प्लांट्स में, इन प्लांट्स टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, then tomato wilt virus, tomato wilt virus. These are the viruses which are found in humans and plants. Okay. These are the different viruses which are found in animals and humans and plants. और इसमें बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है. इसमें बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है. बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है जो अटैक करता है किसके ऊपर? बैक्टीरिया पर. विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है जो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर. दैट वायरस अटैक्स ऑन बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक्स ऑन बैक्टीरिया. तो ये हो गया, दैट इज अबाउट द वायरस. गेटिंग? Okay, this is the classification of microbes. What we have seen into the classification of microbes, we have seen there are two types of microbes, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes का एग्जांपल हमने देखा बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स का हमने एग्जांपल देखा अलगी, फंजाई और प्रोटिस्टा. ओके, देन हमने देखा व्हाट इज मीन बाय वायरस. वायरस क्या होता है? ओके, वायरस का साइज क्या होता है, वायरस प्रोड्यूस कैसे होता है. ओके, दिस इज अबाउट द वायरस. Okay, thank you.